آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آل پیری پمپنگ اسٹیشن بند، کراچی والوں کو 4 دن پانی نہیں ملے گا۔ ملیر شاہ فیصل ماڈل زون کے علاقے متاثر، لانڈھی اور شیرپاؤ ہائیڈرنٹس بند رہیں گے۔ 60 ملین گیلن پانی کی کمی ہوگی۔ نئی لائن کو موجودہ نظام سے منسلک کرنے کا منصوبہ، لائن کو واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا عمل کل سے شروع ہوگا۔ کام 13 جنوری تک مکمل کر دیا جائے گا۔ لائن کو فعال بنانے کے لیے جدید والوز نصب کیے جائیں گے۔ شہر قائد میں پانی کے ساتھ سڑکوں کی ابتر حالت، لائنز ایریا کے مکین سہولیات نہ ملنے پر سیخ پا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ نہ پانی ہے نہ ہی سڑکیں، آخر ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں رمشا اسماعیل کی رپورٹ میں۔ کراچی میں پانی سمیت بنیادی سہولیات کا فقدان، لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل، عظیم پورہ میں پانی نایاب ہو گیا۔ لائنز ایریا میں بھی پانی کی لائنیں خشک پڑنے لگی۔ شہری مہنگے داموں ٹینکر کے ذریعے پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ خواتین کہتی ہیں کہ جمعے کے دن پانی میسر نہیں، متعلقہ ادارے نوٹس لیں۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، سیدھا اسکول چلے گئے، منہ ہی نہیں دھویا، نہایا ہی نہیں ہے۔ اسکول سے واپسی آ گئے اور امی نے بولا پانی بھر کے لاؤ، پانی ہے ہی نہیں۔ مسجد گئے، مسجد والوں نے بولا وضو گھر سے کر کے لاؤ۔ پانی کی بھی یہاں پر ایشو ہے، پانی بھی یہاں بالکل کم آتا ہے۔ یہ لوگ پرائیویٹ لوگ اپنے لیے پانی خرید کے لیتے ہیں۔ انہوں نے 18,000 روپے ہم سے لیے، تمہارے یہاں پانی آئے گا۔ جب انہوں نے لینڈ ڈالی تو پانی آیا، لیکن 1 مہینہ بھی نہیں آیا، اس کے بعد پانی بالکل ختم ہو گیا۔ اب ہمارے بچے اتنے پریشان ہوتے، کبھی مسجدوں میں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کھارا پانی ہے کسی کے یہاں وہ لینے جاتے ہیں۔ لائنز ایریا میں پانی کے ساتھ سڑکیں بھی تباہی کی داستان بیان کرنے لگی۔ سڑک پر موجود گڑھوں کے باعث ٹریفک کی روانی بھی سست روی کا شکار رہی۔ خستہ حال سڑکوں سے گزرنا شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ سیوریج لائن بند کرنے کے لیے سڑک پر مٹی ڈال دی گئی۔ گرد و غبار سے فضا آلودہ ہونے سے شہریوں کو سانس لینے اور مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ دکاندار بھی کاروبار متاثر ہونے کا شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ سیوریج کا پانی نہیں جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آگے بہت زیادہ رکاوٹ آ رہی ہے، بہت زیادہ رکاوٹ ہے۔ اس میں آنے جانے میں بھی پریشانی ہے، لیڈیز ہیں، بچے ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، سب کو پریشانی کا دشوار سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی بہت متاثر ہے۔ انتظامیہ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کا کروا دیں کام، جو پائپ والے تو ہو گیا ہے، یہ روڈ بنوا دیں۔ یہ مٹی جو بار بار اڑ رہی ہے، اتنی لوگ پریشان ہیں۔ علاقہ مکینوں اور دکانداروں نے انتظامیہ سے سڑک کی فوری مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین حسنین کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ دوسری جانب ایک ماہ سے مسلسل گیس کی بندش کے خلاف ملیر اردو نگر کی 5 آبادیوں کے مکین احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 2 ماہ قبل نئی لائن سے 2000 گھرانوں کو کنیکشن فراہم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود گیس کے بجائے صرف ہوا آ رہی ہے۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں گیس کا بحران سنگین، ملیر ٹاؤن، UC3 اردو نگر کی 5 آبادیاں گزشتہ 1 ماہ سے گیس کی بندش کا سامنا کر رہی ہیں۔ مظاہرین کے مطابق 2 ماہ قبل نئی گیس لائن کے ذریعے تقریباً 2000 گھرانوں کو کنیکشن فراہم کیے گئے، مگر لائن میں گیس کے بجائے صرف ہوا آ رہی ہے۔ یہ محمدی کالونی ہے، سعودیہ کالونی ہے، للی ٹاؤن ہے، اردو نگر ہے، ایف ساؤتھ ہے، یہ سارے علاقوں میں تقریباً 2 مہینے پہلے جو ہے وہ لائنیں بچھائی گئی ہیں۔ اس کے بعد نئی سروس پہ کنیکٹ کر کے گئے وہ لوگ، اس کے بعد انہوں نے پرانی لائن کو ڈسکنیکٹ بھی کر دیا۔ اس کے بعد یہ گیس نہیں آ رہی، 2 مہینے ہو گئے، عوام پریشان، بچے پریشان۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ گیس کی عدم فراہمی کے باوجود صارفین کو ہزاروں روپے کے بل بھیجے جا رہے ہیں، جس پر خواتین اور بزرگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ روز ہے نا، صبح جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو جب چولہا آن کرتے ہیں تو اس میں گیس بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بچے اسکول کے لیے اٹھاؤ، بچوں کے لیے نہ ناشتے کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، آج لاسٹ تاریخ ہے 9 تاریخ، گیس کا بل آ گیا ہے، گیس 2 مہینے سے نہیں ہے، گیس نہیں آ رہی ہے، 1100-1200 کا بل آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں لکڑیوں پہ پکا پکا کے نا ہمارا گھر کالا ہو گیا ہے۔ دیکھیں کچی آبادی ہے، اس کچی آبادی کے اندر گیس وغیرہ تو بالکل بھی نہیں آ رہی ہے، مگر بل جو ہے نا وہ بالکل ریگولر کی بنیاد پہ آ رہے ہیں، جس طرح آتے ہیں 5000، 10,000، 15,000 اس طرح کا بل آ رہا ہے۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ اگر فوری طور پر گیس بحال نہ کی گئی تو سوئی گیس کے دفتر کا گھیراؤ کیا جائے گا اور احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کیمرامین تراب کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔
वज़ीर आला सिंध का कराची के लिए 94 अरब रुपए से ज़ायद का बड़ा पैकेज का ऐलान। काटी के साबिक सदर जुनैद नकी ने कहा है कि कराची को बेहतरीन शहरों में शामिल करने के लिए ये पैकेज बहुत अहम होगा। उम्मीद है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जल्द और तेज़ी से काम होता दिखाई देगा। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध का कराची के लिए 84 अरब रुपए से ज़ायद का बड़े पैकेज का ऐलान। काटी के साबिक सदर जुनैद नकी ने कहा है कि कराची को बेहतरीन शहरों में शामिल करने के लिए ये पैकेज बहुत अहम होगा। उम्मीद है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जल्द और तेजी से काम होता दिखाई देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट लग रहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर जो है वो तवज्जो के साथ कराची के ऊपर काम कर रही है। न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बल्कि बुनियादी सेहत के ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। उसके साथ साथ जो है वो ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी जो है वो तवज्जो दी जा रही है। तो ये जो 84 अरब रुपए हैं, अगर तो इसकी टाइमलाइन हमें मिल जाए, हमें इसके प्रोजेक्ट्स की डिटेल मिल जाए, तो कराची वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है ये कि इतने अरसे बाद इतना बड़ा पैकेज जो है वो मिला है। और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रंटियर वर्क्स जिसके साथ मिलके ये काम होगा, तो ये तो बड़ी उम्मीद अफजा बात होगी कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये काम है जो डिलीवर करती है, हमेशा से बड़े प्रोजेक्ट करती है, पाकिस्तान की बड़ी नामी गिरामी ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी। लायंस एरिया पार्किंग प्लाजा के सामने रात गए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ताहम कार्रवाई के चंद ही घंटों बाद दोबारा से ठेले लग गए। शहरियों का कहना है कि तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। तजावुज़ात के खिलाफ जिला इंतजामिया की कार्रवाई तेज। ट्रैफिक रवानी में खलल डालने वाली रुकावटें मिस्मार। लायंस एरिया पार्किंग प्लाजा के सामने सड़क पर जिला इंतजामिया ने रात गए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान सड़क के एतराफ लगे गैर कानूनी ठेले और सामान हटा दिए गए ताकि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। ताहम ऑपरेशन के चंद ही घंटों बाद दोबारा से तजावुज़ात कायम हो गई, जिसके बायस इलाका एक बार फिर ट्रैफिक जाम का शिकार हो गया। शहरियों को कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ शदीद रश रहता है, गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात पेश आती हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि आर्जी कार्रवाइयों के बजाय तजावुज़ात के मुस्तकिल हल के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हो चुके हैं। ये तो सारे दिन का मामूल है। इसके बाद तो ये जब भी हम लोग यहाँ से गुजरते इतनी रश होती है, यहाँ से लेकर वहाँ तक जाने में भी हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। हम तो रात को देख के खुश हो गए थे कि चलो यार अच्छा हुआ कि ये कार्रवाई हो गई है। अभी इसके सामने आप ये यहाँ से एम्प्रेस मार्केट चले जाए, वहाँ पे भी ये KMC वालों की अभी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आज क्या ये रोज ही कार्रवाई होती है। वो ठेले लेके चले जाते हैं, थोड़ी देर के बाद पैसे दे के वापस आ जाते हैं, वही ठेले वही पथारे वहीं के वहीं लगे रहते हैं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कम से कम कोई भी ऐसा काम करें जो मुकम्मल डिसीजन ले तो मुकम्मल ले। ये तो आवाम के लिए अजाब बना हुआ है और कुछ भी नहीं। ट्रैफिक की रवानी तो पूरे कराची में मुतासिर है, लेकिन यहाँ पे तो इतना फ्लो होता है ना, जब आप इवनिंग में यहाँ से निकलेंगी पूरा टावर से जो भी है ट्रैफिक, जितने भी लोग हैं टावर से, वो जिनको भी जहाँ आगे जाना है ये रोड कनेक्ट होती है और यहाँ बुरा हाल होता है। इंतजामिया की कार्रवाई के बावजूद तजावुज़ात का दोबारा कायम होना सवालिया निशान बन गया, जबकि शहरी मुस्तकिल हल के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजर सरापा एहतजाज। इंतजामिया को पीर तक डेडलाइन। ताजरों ने दुकानें फौरी डीसील करने का मुतालिबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया के इलेक्शन पर ताजरों का रिएक्शन। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। ताजरों ने तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया और इंतजामिया को पीर तक की डेडलाइन दे दी। ताजरों ने खबरदार किया कि अगर ऑपरेशन ना रोका गया तो आइंदा लाहे-अमल का ऐलान किया जाएगा। सदर स्मॉल ट्रेडर्स मोहम्मद हामिद ने मुतालबा किया है कि सील की गई दुकानें फौरी तौर पर डीसील की जाएं। उनकी दुकानों को सील कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उनसे माफीनामे लिखवा रहे हैं। किस चीज़ के माफीनामे लिखवाए जाए? हम इसलिए कि हम हुकूमत को टैक्स देते हैं, हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं। अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे। 12 तारीख को इंशाल्लाह हमारा इजलास होगा और हम मुश्तरका लाएमल का ऐलान करेंगे। नायब सदर सलीम मलिक बोले, शहर में सड़कें तबाहाल, सेवरेज का निज़ाम नाकारा है, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल संगीन और भत्ताखोरी और फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, मगर हुकूमत दुकानें सील करने में मसरूफ है। तो आप रोडों पे हटवाएं जो पतारे लगे हुए, जिनसे तकलीफ है, जिनसे ट्रैफिक को तो मसला होता है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, यहाँ बिजली का मसला है, या पानी का मसला है, या ट्रैफिक का मसला है,
उनको तो आप हल कर नहीं रहे, और आप हम दुकानदारों को जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, पीर तक का टाइम देते हैं। पीर के बाद अगर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं हुआ तो फिर हम इंशाल्लाह बड़ी एहतजाज पे जाएंगे। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मामलात पर नजरसानी की जाए और मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ आविश मेमन, सिटी 21। उधर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासर, कराची से आने और जाने वाली ट्रेनें कई घंटे ताख़ीर का शिकार। कैंट स्टेशन पर मुसाफिर परेशानी का शिकार हो गए। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में धुंध ट्रेन ऑपरेशन मुतासर, कराची से आने और जाने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार, मुसाफिर घंटों इंतजार में रुल गए। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस ट्रेन भी ताखीर का शिकार हुई। कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिर कहते हैं कि धुंध एक कुदरती अमल है, लेकिन रेलवे इंतजामिया को चाहिए मुसाफिरों को ट्रेन की ताखीर का एक मैसेज लाजमी करे। पहले हम आते थे ना इधर, पहले जल्दी ट्रेन चल जाती थी, अब ना इधर वावा देर खलोना पड़ता है। ये पता नहीं क्या होता है, इधर ट्रेनों को चलती नहीं है। ट्रेनें टाइम पे जानी चाहिए, टाइम होना चाहिए। इनका जो मुसाफिर आते हैं वो स्टेशन पे बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं। कैंट स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों ने यह भी कहा कि स्टेशन पर रात तक इंतजार करना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा रेलवे इंतजामिया ट्रेन को मुकर्रर वक्त पर रवाना करें ताकि हम इस परेशानी से बच सकें। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर में सर्द हवाओं के डेरे, कम से कम पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की सर्दी में इजाफे की पेशगोई, फिजाई मयार में भी मुज़र सेहत करार दे दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आखिरी दिन मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स 1133 पॉइंट्स कमी से 1,84,409 पॉइंट्स पर बंद हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज फरोख्त का शदीद दबाव, इंडेक्स 1133 पॉइंट्स नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुम्मे को कारोबार मंदी पर खत्म हुआ। 100 इंडेक्स 1133 पॉइंट की कमी के बाद 1,84,409 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,86,180 जबकि कम तरीन सतह 1,83,700 रही। माहिरीन के मुताबिक मार्केट बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद सरमायाकारों की जानिब से मुनाफा समेटने का रुझान देखा गया, जिसके बायस मंदी रिकॉर्ड की गई। यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉफिट रियलाइज़ किया जा रहा है, बट आप देखें कि मार्केट के अंदर अभी भी बैंकिंग सेक्टर लीड कर रहा है। 920 बिलियन रुपीस का जो ना पे आउट दिया है लास्ट ईयर बैंकिंग सेक्टर ने, तो उम्मीद है अभी भी इससे वाबस्ता हैं, क्योंकि आने वाला जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसकी अनाउंसमेंट शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ सीमेंट सेक्टर है, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन है, और आपके रिफाइनरीज हैं। ओवरऑल पोजीशन बेहतर है मार्केट में। आज थोड़ा सा जो है ना लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग में रहेगी, लेकिन ऐसा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है मार्केट के अंदर। जी देखिए, मार्केट अपने टॉप पर है और तकरीबन 12-15 हज़ार पॉइंट मार्केट अपने बॉटम से ऊपर आ गई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सी सेलिंग प्रेशर है। लेकिन ये है कि आप दूसरे सेशन में जुमे के आप देखते हैं कि दूसरे सेशन के थोड़े आखिरी हिस्से में मार्केट फिर अपने ऊपर पे आ जाती है, तो ये मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है और ओवर बाइंग भी है लोगों की, तो इसलिए लोग एडजस्ट भी करते हैं जुमे के छोटे। मजमूई तौर पे तो सूरत हाल अच्छी है। देखें ना, आप अगर 12-15 हज़ार पॉइंट की बात करें तो आप देखेंगे तो मार्केट में 400-500 पॉइंट की कमी वो नहीं है। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,85,543 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21।